Welcome students, welcome to VN online classes. So students, in the previous lecture you have studied about the vibratory motion and the terms which are associated with the vibratory motion. So our today's lecture is about exploring SHM, the very basic points which are needed to be clear when you are going to understand the simple harmonic motion. So today's lecture contents are SHM exploring. That means you will explore the definition of SHM and the points which are associated or the points which are shown or described in the SHM definition. So in that, those 2 points which are associated with the definition are the Hooke's statements or Hooke's law and the restoring force. So students, the definition of simple harmonic motion is the type of vibratory motion in which the force is directly proportional to the displacement of the vibrating body from the mean position on either side of the mean position. So you have cleared the concept of the displacement and the amplitude. So now the force is directly proportional to the displacement. So further going away from this point, we are going to study about the Hooke's statement. Students, Hooke's law ने बोला या Hooke's ने बोला कि अगर हम फोर्स लगाते हैं, obviously जब इस बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे which is connected to the spring and that spring is attached to the rigid spot. So यहाँ पे ये फोर्स लगा के हम इसको क्या किया, हमने इसको पोजीशन ए पर लेकर गए, फोर्स लगाई हमने और पोजीशन ए पर लेकर गए. हुक्स ने ये बोला कि when you will apply the force, obviously the length of the spring will increase. तो हुक्स ने क्या बोला, उसने बोला कि जब फोर्स आप लगाते जाएंगे, एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. सो कैसे जी, ऑब्वियसली जब मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं, दिस इज द नॉर्मल स्प्रिंग. सो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, यहां पे जो इसके लूप्स हैं वो इस तरह हो जाएंगे. क्या करता हूं, फोर्स की मैग्नीट्यूड को मैं इंक्रीज कर देता हूं. फोर्स की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने से क्या होगा, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल आल्सो इंक्रीज. सो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द हुक्स लॉ. हुक्स ने ये बोला कि द फोर्स, the extension in the length of the spring is directly proportional to the force. The force is directly proportional to the displacement or extension in the length of the spring. कि जितनी आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, length of the spring क्या होता जाएगा, increase करता जाएगा. So we are going to eliminate this sign of proportionality. So here it becomes F is equal to kx. So what is this? This is the statement or the last statement of the Hooke's law. F is equal to kx. So ये फोर्स तो हमने लगाई और extension in the length of the spring हुई. सो फोर्स लगा के हमने यहां पे हम इसको पॉइंट ए पर लेकर गए. अब एक और फोर्स है जो स्प्रिंग को क्या कर रही है, स्प्रिंग इस मास को क्या कर रहा है, इसको मास को अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा. ठीक है जी, हमने फोर्स लगाई, इन रिस्पांस स्प्रिंग ने क्या किया, उसने भी फोर्स लगाई मास को, उसने स्प्रिंग मास पे फोर्स लगाई और मीन पोजीशन पर लाना है उसने. सो दिस फोर्स which is trying to keep this body at the mean position is called as a restoring force of the spring. So that means what is a restoring force? अब आते हैं पॉइंट की तरफ कि restoring force क्या है. यहाँ पे F is equal to kx होगी. So restoring force कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे मास स्प्रिंग सिस्टम में, ये हमारा मास स्प्रिंग सिस्टम है, इस सिस्टम में स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो इस मास को क्या करेगा, इसको मीन पोजीशन पर लाने की ट्राई कर रहा है. So that means this force of the spring is called as a restoring force. So students, the restoring force आती कहां से, इस सिस्टम में restoring force कहां से आती है. So student, restoring force यहां पे स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है.
जितना स्प्रिंग स्टिफ होता जाएगा, जितना स्प्रिंग स्टिफ होता जाएगा यहां पे उतनी फोर्स ज्यादा होती जाएगी, और जितना स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कम होती जाएगी उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती जाएगी स्टूडेंट्स, वो डिक्रीज होती जाएगी। सो दैट मीन अब यहां पे पॉइंट जो अंडरस्टैंड करने वाला है, हमने फोर्स लगाई F इज इक्वल टू kx, दिस वाज द अप्लाइड फोर्स जो हमने अप्लाई की थी, और इस बॉडी को यहां से पुल करके हम पोजीशन A पर लेकर गए, यहां पे हमने इसको अप्लाई किया था। सो नाउ अनदर पॉइंट, अब जहां पे मैक्सिमम पॉइंट में जब ये पहुंचा, यहां पे स्प्रिंग ने इस पर बैकवर्ड जो फोर्स लगाई, दैट वाज द रिस्टोरिंग फोर्स, वो भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी जो फोर्स अप्लाई की गई, द मैग्नीट्यूड में इक्वल, दैट मीन वो रिस्टोरिंग फोर्स Fr, रिस्टोरिंग फोर्स वो किसके इक्वल होगी, वो मैग्नीट्यूड में उस अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी, बट इट ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में क्या होगी, ऑपोजिट होगी। दैट मीन डायरेक्शन में ऑपोजिट होने का मतलब क्या, कि अगर ये फोर्स क्या कर रही है, जरा सुनिएगा पॉइंट को, अगर ये फोर्स हम अप्लाइड फोर्स यहां पे इधर लेकर गए तो ये क्या करेगा, इसको बैकवर्ड ओपन करेगा। अगर हम स्प्रिंग को यहां से कंप्रेस करते हैं, मीन अब फोर्स करके अप्लाई करके यहां पे पॉइंट बी पर लेकर जाते हैं, अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इसको पुश करेगा, यहां पे स्प्रिंग ने इसको पुल किया, यहां पे इसने स्प्रिंग ने क्या किया, इसको पुश किया, पुशिंग यहां पे होगी और इस पॉइंट पे पुलिंग होगी, कौन करेगा, स्प्रिंग करेगा, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग करेगा। तो इसका मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, ऑलवेज द रिस्टोरिंग फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच ऑलवेज पुल्स द बॉडी और पुशेस द बॉडी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। सो स्टूडेंट्स, हम यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स के लिए, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दैट द वैल्यू ऑफ दैट इज kx, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन के लिए हमने यहां पे किसका यूज किया, माइनस का यूज किया। सो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। सो यहां पे हमने हुक्स लॉ और रिस्टोरिंग फोर्स को क्लियर किया। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम के F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का मीन क्या है, दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मीन्स, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यहां पे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में बोला था स्टूडेंट्स कि when the type of vibrating motion in which the force is directly proportional to the displacement of the body, vibrating body from the mean position. So students, यहां पे याद रखें हमारा डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक का x नॉट है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सो यहां पे वो फोर्स होगी वो भी मैक्सिमम होगी। कौन सी फोर्स मैक्सिमम होगी स्टूडेंट्स, वो फोर्स जो पुल करके इसको वापस ला रही है। कॉन्सेप्ट इज दैट रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है जी, मैक्सिमम होगी। अब ये बॉडी यहां से मूव करके इस पॉइंट पे आ गया, यहां से मूव करके जैसे ही हम इसको यहां से रिलीज करेंगे ये इधर आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या रह गया, यहां से यहां तक, दिस इज x displacement from the mean position. So students, you know, जैसे जैसे ये वापस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बॉडी आएगा, ये बॉडी m टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आएगा, ऑब्वियसली स्ट्रेचनेस जो लेंथ में इंक्रीमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे वो नॉर्मल की तरफ आना स्टार्ट करेगा तो यहां पे जो अप्लाई कर रहा है स्प्रिंग फोर्स, दैट विल आल्सो डिक्रीज। सो इस वजह से ही इसने बोला कि जैसे जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता जाएगा तो फोर्स भी, अगर बॉडी यहां पे आ जाता है तो फोर्स, अब डिस्प्लेसमेंट ये रह गया, फोर्स और डिक्रीज होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया। आते आते जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, यहां पे मीन पोजीशन पर पहुंचेगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर फोर्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नेट फोर्स विच इज अप्लाइंग, net force which is applying the spring is applying on the body will become zero। जब क्यों जीरो होगी, अब स्टूडेंट्स ये भी तो देखें, डिस्प्लेसमेंट यहां पे मैक्सिमम था, कम हुआ और डिक्रीज होता गया, और इस पॉइंट पे आके डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। एज द डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो, सो द फोर्स आल्सो बिकम जीरो, द फोर्स हैज आल्सो बिकम जीरो। सो अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहां पे ये स्टॉप नहीं करता, क्यों नहीं करता, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहां पे ये स्टॉप नहीं होता, ये मूव करता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोजीशन बी। अब यहां पे स्टूडेंट्स बॉडी यहां पे पहुंच गया। अब आप देखें कि क्या हुआ,
बॉडी इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। अब क्या, जैसे ही बॉडी इधर जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, पुश करेगी इसको। बॉडी की मोशन इस डायरेक्शन में है और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। अब बॉडी क्या करेगा, पुश करेगा फोर्स को, अपना स्प्रिंग क्या करेगा, इस बॉडी को पुश करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे जैसे ये मीन पोजीशन पे की तरफ पुश करेगा, डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स है, जो ये बॉडी मूव करता रहेगा नेक्स्ट पॉइंट बी की तरफ, जैसे जैसे ये मूव करेगा बी पॉइंट की तरफ, फोर्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। पुशिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेस। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करती जाएगी, आप ये भी देखें डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। जैसे इधर ये पहुंचा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट x है, फोर्स Fx हो गई। यहां पे डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, फोर्स क्या हो जाएगी, Fx1। और यहां पे x0 यानी कि एम्पलीट्यूड, तो यहां पे फोर्स भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम या Fx0 कर देते हैं हम। दैट मीन मैक्सिमम फोर्स व्हिच इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट x0 डिस्टेंस। सो अब क्या हुआ, यहां पे फोर्स मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम फोर्स क्या करेगी, इस बॉडी को यहां पे स्टॉप कर देगी। बॉडी स्टॉप हो गया, अब क्या करेगा, बॉडी अगेन स्टार्ट करेगा टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब यहां पे अगर आप गौर से देखें, जो यहां पे डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, एज द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग द फोर्स इज आल्सो डिक्रीजिंग। when it reaches at mean position, the force has become zero, and as it keeps on moving towards the to the extreme position B, the displacement increases. As the displacement increases, the force is goes on increasing. So as it reaches at x0 distance, the maximum displacement from the mean position, the force has also become the maximum. So इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्लियर होता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट द फोर्स एंड एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to the Newton second law of motion, acceleration is directly proportional to the force. न्यूटन ने ये बोला था कि acceleration is directly proportional to the force. So students, acceleration is directly proportional to the force. इसका मीन क्या निकला कि फोर्स इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सो from 1 and 2 we conclude that this acceleration is also directly proportional to the displacement of the vibrating body from the mean position. Students, यहाँ पे थोड़ा सा acceleration को हम डिस्कस करते हैं।